Today we'll be understanding the provisions relating to job work under the GST law. In this video, we'll understand what is job work, what are the provisions relating to job work under the GST law, and what are the compliances to be made. First, we'll see what is the meaning of job work. Job work किसे कहते हैं? Job work means processing or working on goods owned by the principal. मतलब कि कुछ किसी गुड्स के ऊपर कुछ काम करना इज जॉब वर्क. फॉर एग्जाम्पल मशीनिंग और पेंटिंग. जॉब वर्क कौन से गुड्स पर हो सकते हैं? ऑन रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड्स. इसके अंदर कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कि रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड्स पर ही जॉब वर्क हो सकता है. जॉब वर्क कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एनी टाइप ऑफ गुड्स. नाउ विल अंडरस्टैंड हु इज प्रिंसिपल. Principal is the person who owns the goods. Principal is the person who sends the goods to the job worker for processing. Principal is the owner of the goods. मतलब कि जॉब वर्कर को कोई गुड्स भेजते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ओनरशिप ट्रांसफर होती है. The ownership of the goods is still with the principal. Therefore, the owner of the goods is the principal itself. Now we'll understand who is job worker. Job worker is the person who performs activity on the goods supplied by the principal. मतलब जो बंदा गुड्स के ऊपर कुछ काम करता है जो किसी और के होते हैं उसे हम जॉब वर्कर कहेंगे. What is the definition of job work under GST? Job work means any treatment or process undertaken by a person on goods belonging to another registered person. Treatment or process undertaken by a person on goods. Undertaken by a person मतलब job worker on goods belonging to another registered person. ये जो another registered person is the principal. He is the owner of the goods. Now we'll understand what are the compliances to be done by the principal at the time of sending goods to the job worker. Friends, हमने देखा है कि जब भी हमें goods बिजनेस प्रीमाइसेस के बाहर लेके जाने होते हैं तो इट हैज़ टू बी इशूड विथ डॉक्यूमेंट विच मे बी इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और सम अदर डॉक्यूमेंट. वैसे ही हम देखेंगे कि कौन से कंप्लायंसेस करने हैं प्रिंसिपल को एट द टाइम ऑफ सेंडिंग गुड्स टू द जॉब वर्कर. तो पहले कि गुड्स कैन बी ट्रांसफर टू द जॉब वर्कर विदाउट इशूइंग टैक्स इनवॉइस एंड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. मतलब कि जॉब वर्कर को गुड्स भेजते टाइम हमें कोई इनवॉइस इशू की ज़रूरत नहीं है या ना कि कोई टैक्स भरने की ज़रूरत है, बिकॉज हम उसे कुछ काम करने के लिए गुड्स भेज रहे हैं ना कि हम उसे सेल कर रहे हैं. दैट इज़ वाई इस GST लॉ के अंदर प्रोविजंस है जिसके अंदर हम गुड्स जॉब वर्कर को प्रिंसिपल से हम विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एंड विदाउट इशूइंग टैक्स इनवॉइस भेज सकते हैं. तो फ्रेंड्स, एक कोई ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स होगी ही जिसके थ्रू हमें प्रिंसिपल से जॉब वर्कर को गुड्स भेजने होंगे. तो वो डॉक्यूमेंट है डिलीवरी चलन. तो ये डिलीवरी चलन कहाँ स्पेसिफाइड है? द डिलीवरी चलन इज स्पेसिफाइड इन रूल 55 ऑफ द CGST SGST रूल्स. So friends, the goods shall be sent to the job worker through a delivery chalan or chalan as per rule 55 of the CGST SGST rules. Now, अब मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए ई-वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है. Friends, without generation of e-way bill up to certain limits, it is impossible for a GST registered taxpayer to move the goods from a place to another place. Therefore, e-way bill generation is compulsory at the time of removal of goods from the place of principal to the place of job worker. So friends, e-way bill will have to be generated on the basis of delivery challan issued for movement of goods to the job worker's premises. Friends, let me tell you, as there are limits for generation of e-way bill on the basis of invoice issued up to a limit of rupees 50,000 or rupees 1 lakh respectively within the state or outside the state. But friends, let me tell you one thing, that under job work, if you are supplying any goods under delivery challan from principal to job worker, e-way bill generation is compulsory irrespective of the amount of the delivery challan. So friends, there is no limit for generation of e-way bill with respect to goods sent for job work. Therefore, e-way bill is compulsory for movement of goods sent for job work. So let me tell you one thing. If एक एग्जाम्पल ले लेंगे, इफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स टू बी सेंट फॉर जॉब वर्क आर ₹10,000, देन ऑल्सो ई-वे बिल विल हैव टू बी जनरेटेड. हाउएवर, अगर से ये जॉब वर्क नहीं होता है, नॉर्मल सेल ट्रांजेक्शन होता, तो सिंस द वैल्यू इज बिलो 50,000 और 1 lakh इन केस ऑफ इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सप्लाई, द ई-वे बिल वुड नॉट हैव टू बी जनरेटेड.
अब हमने देख लिया कि कंप्लायंसेस क्या है मूवमेंट के टाइम पे, मतलब सेंडिंग गुड्स टू द जॉब वर्कर। अब हम देखेंगे कि रिटर्न्स कौन से भरने हैं रिलेटेड टू जॉब वर्क। तो जो भी हम जॉब वर्क के रिलेटेड डिलीवरी चैलेंज इशू करते हैं उसके डिटेल्स हमें जीएसटीआर 1 के अंदर डिस्क्लोज करने होंगे। जीएसटीआर 1 के अंदर एक सेपरेट टैब है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स इशूड का डिटेल्स डालना होता है, तो उसके अंदर हम डिलीवरी चलन के डिटेल्स डालेंगे। फर्दर जो भी हम गुड्स एक डिलीवरी चलन के बेसिस पे प्रिंसिपल के प्लेस से जॉब वर्कर के प्लेस पे भेजते हैं उसके लिए हमें एक सेपरेट क्वार्टरली रिटर्न भरना होगा। तो द डिटेल्स ऑफ गुड्स sent for job worker will also be reported in form GST ITC 04 by the principal। तो फ्रेंड्स जो ओनर है उस गुड्स का जॉब वर्क के उसे ही GST ITC 04 भरना होगा। उसके अंदर सब डिटेल्स डालने होंगे कौन से गुड्स उसने प्रिंसिपल के प्लेस से मतलब खुद के प्लेस से जॉब वर्कर को सप्लाई किए हैं। ये रिटर्न कब फाइल करना होगा? द पीरियोडिसिटी टू फाइल GST ITC 04 इज क्वार्टरली विच हैज टू बी फाइल्ड बाय 25th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। मतलब कि जिस क्वार्टर के अंदर हमने गुड्स सप्लाई किए हैं उसके एंड्स के 25th डे तक हमें GST ITC 04 फाइल करना है। It is a separate return। GST ITC 04 is a separate return। GST ITC 04 के अंदर क्या क्या डिटेल्स भरने होंगे? गुड्स डिस्पैच टू द जॉब वर्कर, गुड्स रिसीव फ्रॉम द जॉब वर्कर, गुड्स रिसीव और गुड्स सेंड फ्रॉम वन जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर। मतलब कि उसमें हमें कौन से डिटेल्स डालने हैं कि गुड्स कौन से गुड्स हमने जॉब वर्कर को भेजे, कौन से गुड्स हमें वापस मिले, कौन से गुड्स एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को हमने सेंड किए, वो भी डिटेल्स डालने हैं। अब हम समझेंगे प्रोविजंस रिलेटिंग टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट अ टर्म इन टर्म्स ऑफ जीएसटी लॉ। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजंस जानना हमें बहुत ज़रूरी है व्हेन वी रिलेट टू जॉब वर्क। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजंस क्या है रिलेटेड जॉब वर्क हम ये जानेंगे। As the goods are supplied by the principal to the job worker under delivery challan, there is no need to raise tax invoice। Friends, input tax credit is related to tax invoice। Since हम जॉब वर्क के केस में डिलीवरी चलन यूज करते हैं या इशू करते हैं, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते, तो देर इज नो नीड टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड सिंस जीएसटी चार्ज नहीं होता है इनवॉइस के ऊपर। हाउएवर जो गुड्स प्रिंसिपल को मिलते हैं, प्रिंसिपल जो गुड्स परचेस करता है और जॉब वर्क के लिए भेजता है उसे उस गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है क्योंकि वो फर्दर सप्लाई नहीं कर रहा है, वो फर्दर अभी सिर्फ जॉब वर्क के लिए भेज रहा है अंडर डिलीवरी चलन। हाउएवर उसके पास पोजीशन के अंदर गुड्स नहीं है, मतलब कि गुड्स आर नॉट इन द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल, देन ऑल्सो वी कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। Therefore, the principal can still avail the ITC on inputs sent to the job worker even though the goods are not in possession of the principal। Friends, ये बहुत important है जानना क्योंकि possession of goods or receiving services is a important factor in claiming input tax credit। However, for job work even though goods हमारे पास नहीं है, वो जॉब वर्कर के प्लेस पे है, तो भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। The principal can still avail ITC on goods which are directly sent to the job worker। Now, अभी हमने तो ये देख लिया कि गुड्स के रिलेटेड, बट जॉब वर्क एक सर्विस है, तो जॉब वर्क की सर्विस है उसके लिए जॉब वर्कर एक इनवॉइस इशू करेगा। The job worker will raise invoice of job work services to the principal for which the principal will avail ITC। Since जॉब वर्कर ने जो सर्विस दिया वो प्रिंसिपल को रिसीव हुई है, since he is the recipient of service, उसे उस जॉब वर्क सर्विस का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। Therefore, the goods sent to job worker by the principal would not affect the ITC। देखिए फ्रेंड्स, ना कि गुड्स जो सेंड किए उसने जॉब वर्क के लिए उसके आईटीसी को उसको फर्क पड़ेगा, ना ही जॉब वर्क सर्विस की जो इनवॉइस है उसके आईटीसी का उसे कुछ फर्क पड़ेगा। देयरफॉर एट द एंड ऑफ प्रिंसिपल इफ ही कंप्लाइज विद डिलीवरी चलन एंड जीएसटी आईटीसी 04 ही कैन अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द गुड्स एज वेल एज सर्विस रिसीव्ड बाय हिम। Now we'll understand the provisions related to goods returned back by the job worker। पहले हमने देखा था provisions relating to principal sending goods to the job worker। Now we'll see the goods returned back by the job worker to the principal।
The input goods have to be returned within 1 year by the job worker and within 3 years in case of capital goods. मतलब जिस दिन हमने प्रिंसिपल से जॉब वर्कर को गुड्स भेजे उस दिन से लेके 1 साल या 3 साल इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स के अंदर हमें वो गुड्स वापस मंगाने होंगे जॉब वर्कर से. तो फ्रेंड्स अगर से ये हम नहीं करते, ये टाइम लिमिट के अंदर हम गुड्स जॉब वर्कर से प्रिंसिपल के पास नहीं लाते हैं, तो उसके रिपरकेशंस क्या है. In case the goods are not returned within the limits specified above, then the same would be considered as supply from principal to the job worker. मतलब जो हमने डिलीवरी चलन के अंदर प्रिंसिपल से जॉब वर्कर को गुड्स भेजे थे उसे सप्लाई ट्रीट किया जाएगा. इट विल बी ट्रीटेड एज गुड एज सप्लाई. मतलब कि एक इनवॉइस इशू किया है ऐसा ट्रीट किया जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो प्रिंसिपल है उसे अलॉन्ग विद GST एंड इंटरेस्ट वो compliances करने होंगे. मतलब if the same is treated as supply, the principal will have to pay GST along with applicable interest on the same. Friends, 1 साल का interest is 18%. If the goods are not returned back by the job worker within 1 year or 3 years, then he'll have to pay GST along with interest. Therefore, it is necessary for the principal and the job worker to keep a track of the time the goods are present with the job worker. एक ट्रैक शीट मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल और जॉब वर्कर के लिए टू डिटरमाइन द टाइम लिमिट एंड द टाइम स्पैन द गुड्स आर अवेलेबल विद द जॉब वर्कर. I hope you all have liked the video and the explanation. I'm waiting for your feedbacks. Stay home, stay safe and stay updated.